Hello, Assalamu alaikum. Once again, we are here with soil microbiology, and today we have to talk on advanced soil microbiology. Microorganisms which are living in soil, they have interactions with each other, as well as they have interactions with other substances, maybe inanimate or animate or living substances, with plant roots, with protozoans, with fungus, with soil, with water, and with everything. So microorganisms which are present in soil, they are making a complex ecosystem, complex ecology. So we will talk about in soil microbial ecology, soil microbiome structures, microbiology structure of microbial community. Number one, which type of microorganisms are there? Number two, we will discuss in detail the function, what they are doing over there, and what is their level of the diversity. We will see these things. So be with me. In this report, Introduction to Soil Microbial Ecology, a study of microorganisms in soil ecosystem. Especially, we are talking about the rhizosphere, the top surface soil which contains various types of microorganisms, protozoans, worms, plant roots, water content, organic material, decaying material, and which type of microorganisms are living in that top of the soil, which includes almost up to 12 inch. This soil contains mainly bacteria, fungi, archaea, protozoa. It includes bacteria, fungi, archaea, protozoans, virus. These all organisms which are very small and only can be seen through microscope. So these all organisms which are living in soil surface, which includes up to 12 inch of the soil, which contains different substances, critical for ecosystem functioning and sustainability. So this is the main soil which is performing very important role in soil ecology, because this is the soil which is more functioning soil. It means decaying of organic material takes place over there. A recycling of nutrients takes place over there. Nutrients are present in this soil which are absorbed by plants, nutrients are present in dissolved form, and the toxins which are coming from any source are coming into the top this soil. So microbial population have to face. This is very important and critical for ecosystem to function and to be sustained. If these all matters are bacteria, if these all substances, these all factors, if not present over there, it means that there is no ecological function that may be considered, that can be considered a dead system. If these all components are in active form, they are performing their function, they are converting nutrients in soluble form, and soluble form nutrients are absorbed by the plant, and that gives a support to the new plant for photosynthesis, which are fixing environmental gases and reducing the greenhouse effects. So this, if this soil microbial, which contains microorganisms and other factors, if it is functioning, it means this soil is functioning. This ecology is important. This is active ecological system. So importance of soil microorganisms. The microorganisms which are present in soil surface, especially up to 12 inch,
in which we have counted many other substances such like decaying material, humus, water, organic matter, nutrient cycling. So, what they are doing, microorganisms, what is the function of microorganisms in this soil? Number one, they are converting nutrients from their complex form to simplest form. They are carrying the cycles of carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle. These are converting from their complex form to elemental form, and from elemental form to again a biological form or in organic form. So wherever this is happening, this nutrient cycling is taking place, such soil is considered fertile soil, and fertile soil supports the plant growth, because we are all belonging from the agriculture system. We are little bit familiar, are well familiar with the soil fertility and plant growth as well as with agriculture. So fertile soils are supporting to the microbes as well as plant growth. So these microorganisms are playing important role in climate regulation. When ecosystem in functioning, here we have to understand little bit clearly. जब ये इकोलॉजिकल सिस्टम एक अच्छे तरीके से काम करता है, परफॉर्म करता है, क्या होता है वहां पर? व्हाट हैपेंस ओवर देयर? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती रहती है। ऑर्गेनिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल whatsoever is going to be produced, that is decomposing, that is going to be converted into elemental form. जब ये elemental form में convert होता है, तो it means nutrients are present over there in a huge amount. So this soil is fertile. Now this soil will support to the plant growth. When plant will grow in a soil, it means that is good soil. And these plants are responsible now to maintain that soil. अब ये जो प्लांट ग्रो करते हैं, इसके जमीन को बरकरार रखने में, जमीन की मौजूदा हैयत को सस्टेन रखने में, बरकरार रखने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। Plant roots, these are supporting to the soil, these are stopping soil erosion. Number one, if plants are growing in fertile soil, these roots are responsible to recharge the groundwater from rainwater. These plants are responsible to stop the flooding situation, either that is water flood or muddy flood. These plants are responsible to fix the environmental carbon dioxide concentration. So these microorganisms are functioning in soil. It means after several stages, these are supporting to the climate maintenance. These are responsible to maintain the climate in one way, which I have explained to you. कि plant grow हो गए, उसने जमीन को भी मजबूत किया, उसने ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज किया, उसने सॉइल एरोजन को भी स्टॉप किया, और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस किया, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब किया। Same time, these roots are supporting to the microorganisms which are responsible to fix the environmental nitrogen. नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया इनके रूट्स में मौजूद होते हैं, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक कुदरत ने जो इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया, ये मेंटेन रहता है, ये सस्टेन रहता है, जो हर किस्म की जिंदगी को सपोर्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। थर्ड थिंग, the microorganisms playing in soil, that is bioremediation. Any type of material which is going into the soil, if it will not decompose, it will be a burden on the soil surface. So microorganisms have prime responsibility to convert this organic material or inorganic material into elemental form, less toxic form, into binary compounds which are less toxic compared to its original compound. कोई भी खतरनाक किस्म का मटेरियल, सिंथेटिक टाइप का मटेरियल, पॉलीमर टाइप का मटेरियल जब सॉइल में चला जाता है, तो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो अवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू वर्क ऑन इट, दे हैव टू रेमिडिएट इट। बायोरेमिडिएशन में हम इसको तफसील से पढ़ चुके हैं। या तो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसको डिग्रेड करेगी, या उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, जिसको हमने अगुमेंटेशन का नाम दिया था। या बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर एंटर करेंगे जो उस सब्सटेंस को बायोरिमीडिएट करेंगे। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमीडिएट any type of material which is going into the soil. तो ये जो चार 1 2 3 4 ये चार फंक्शंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और कोई भी किस्म का मटेरियल वहां चला जाता है तो उसकी बायो रिमेडिएशन करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉइल माइक्रोबायोम स्ट्रक्चर। इसको देखना बहुत जरूरी। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजी, हम लोगों का अभी तक ये बिलीव है कि जस्ट वी हैव टू फॉलो वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर बैठ जाते हैं कि जी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड वी बिलीव एंड वी हैव structured this belief, confirmed this belief that 1 gram of fertile soil contains trillions of microorganisms. 10 is the power 9 microorganisms are present in 1 gram of the soil. So either this is one type of microbial population or diverse. So remember this thing always. Whenever we are going in a forest, we are not looking one tree, we are looking the whole forest. ये चीज आपने समझनी है। जंगल में जाते हैं तो कभी भी हम किसी एक दरख्त के ऊपर फोकस नहीं करते, हम उस पूरे फॉरेस्ट को देख। Whenever we are going to see the microbial community, we are not looking the one microorganism, we are looking the whole microbial population which are present over there. So microbes are present in soil, those are complex and heterogeneous, मुख्तलिफ complex है, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी है, प्रोटोजोन्स भी हैं। बैक्टीरिया के अंदर अपनी सेवरल जेनरास, थाउजेंड्स ऑफ जेनरास मौजूद हैं, ठीक है ना। और वो सब हेट्रोजीनस हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, अंदर के भी हैं, मिक्सअप टाइप की माइक्रोबियल पॉपुलेशन में। जिस तरह जंगल के अंदर जब हम देखते हैं तो एक बड़े दरख्त होते हैं, उसके साथ छोटे हजारों किस्म की जो है ना जड़ी बूटियां, घास फूस, हर तरह की माइक्रो पॉपुलेशन वहां मौजूद होती है, प्लांट्स। Similarly, soil contains several types of microbial community, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी, वायरसेस भी, प्रोटोजोन्स भी, और बैक्टीरिया के अंदर फिर अपने सेवरल जनरा हैं, वो उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। और यहाँ एक बात, we have to understand one thing more over here, that wherever microbial population is complex and diverse, that ecological system is more better than that where one type of microbial population is present. Sorry, जहां कहीं पर भी मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोबियल पॉपुलेशन मौजूद होती है, वो बेहतरीन इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। क्यों? वो किसी भी किस्म के टॉक्सिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन नहीं तो दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी पॉपुलेशन जो है ना उसको डिग्रेड कर सकती है। इसी तरह जो ऑर्गेनिक मैटर वहां उस सॉइल में आ जाता है, उसको भी कई किस्म की माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है ना डिकम्पोज कर सकते हैं। क्यों? सॉइल के अंदर माइक्रो हैबिटाट्स, पोर्स मौजूद होते हैं, पोरस सॉइल होती है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सेफ रखते हैं, वहां ग्रो करते हैं, इसलिए माइक्रोबियल कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है। आ, उसकी स्ट्रक्चरिंग होती है, उससे मजीद जो माइक्रोबियल एक्सुडेट्स निकलते हैं वो केमिकल मजीद एग्रीगेट्स बनाते हैं, सॉइल को मजीद कंपैक्ट कर देते हैं, और वो पोरस भी होती है। और ये किससे, इनको मुतासिर कौन कौन कर सकता है? माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉइल टाइप,
कि किस तरह की माइक सॉइल है। क्या वो पोरस सॉइल है, क्या वो कैलकेरियस सॉइल है, क्या वो सैंडी सॉइल है, क्या वो क्ले सॉइल है, किस तरह की सॉइल है। जितनी सॉइल पोरस होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, माइक्रोबियल ग्रोथ, रूट प्रोलिफरेशन आसान होगी, और वहां डाइवर्स माइक्रोबियल पॉपुलेशन ग्रो करेगी। और ऐसी सॉइल जो मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन कर सकती है, वहां पर भी माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी होगी, बेहतर होगी। तीसरी चीज, माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर को जो इन्फ्लुएंस करता है सॉइल का पीएच। अगर सॉइल का पीएच अराउंड न्यूट्रल है तो यह हर तरह की माइक्रोबियल पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अगर ये अल्कलाइन की तरफ जाएगा तो वो स्पेसिफिक टाइप की माइक्रोबियल पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा। अगर एसिडिक की तरफ जाएगा तो स्पेसिफिक माइक्रोबियल कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। न्यूट्रल रहेगा, डाइवर्स माइक्रोबियल कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा। फंक्शनल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर डूइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हियर। इसके अंदर तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं, माइक्रो हैबिटाट्स में मौजूद होते हैं, एग्रीगेट्स फॉर्मेशन करते हैं, पोर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एंड दिस। अब ये क्या काम करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहां मौजूद है। फंक्शनल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फॉरेस्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा, एग्रीकल्चर सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, और कुछ रिकल्सिट्रेंट या प्लास्टिक टाइप के मटेरियल्स होंगे। उन सबको डिकम्पोज कर, नंबर वन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसकी डिनाइट्रिफिकेशन भी करते हैं। ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो फास्फोरस, जो एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद होती है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, एसिड्स की प्रोडक्शन करते हैं जो फास्फोरस को सोलेबलाइज करते हैं। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने एक चीज ड्रॉ की है, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस। ये कैसे करते हैं। ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था, ये चेन है जो कि जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज आखिर में जाकर एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। Various type of microbial populations are playing role over here, कि एक सेलुलोज को हेमीसेलुलोज में कन्वर्ट करता है, दूसरी पॉपुलेशन हेमीसेलुलोज को डाइसक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइसक्राइड्स को फिर जो तीसरी पॉपुलेशन मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स को फर्दर तीसरी पॉपुलेशन आकर उसको एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन हैं इसको हमने कोरिलेट करने की कोशिश की। लेट्स सी आवर हियर, ग्लूकोज को जो है ना लैक्टोबैसिलस, उसको डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, डी ग्लूकोज वन फॉस्फेट, ये डी ग्लूकोज, इसको लैक्टोबैसिलाई डी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। डी ग्लूकोज को फर्दर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोडोमोनास, ये कन्वर्ट करते हैं डी फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट के अंदर। तीसरी पॉपुलेशन आती है जो डी फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट को लिग्नोस्टॉक्स, इसको ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दे। ग्लिसरेट फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट को स्टेफिलोकोकस पायरुवेट टू में कन्वर्ट कर दे, और पायरुवेट को इसको फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्नकस जो है ना, क्लस्ट्रीडियम, ये इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। इथेनॉल को स्टेरोकोकस जो है ना पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, पायरुवेट मेटाबॉलिज्म की तरफ, और यही पायरुवेट को फर्दर दूसरी पॉपुलेशन ये स्टेप वाइज कन्वर्ट करते हुए लास्ट में इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो वी कैन सी एक सिंपल शुगर को कन्वर्ट करने के लिए कितनी माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हैं एट डिफरेंट स्टेज। So this is the function of the microbial population in soil to
decompose the organic material systematically, step by step into elemental form. और हर स्टेप पर एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन अपने आप को मुस्तफीद करती है, अपनी पॉपुलेशन टू सस्टेन देयर पॉपुलेशन, टू इंक्रीज देयर नंबर एंड टू प्रोड्यूस देयर मेटाबोलाइट्स। इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। ये एमजी राष्ट्र के थ्रू, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर है, उसके थ्रू हम लोगों ने जनरेट किया है। Modern soil microbiology approach. Now here is a question. Because we have not to see one microorganism in soil ecology, we have to see lot of the microbial populations in soil. तो हमारा जो क्लासिकल जो अप्रोच हैं, जिसमें हम सॉइल को लिया, उसको डाइल्यूट किया, उसको फिर प्लेट के अंदर पोर किया, उसको इंक्यूबेट किया, फिर उसमें से कोई चीज देखने की कोशिश की। सो इन दिस वे वी कैन नॉट सी द whole microbial population. We have to see whole microbial population in soil, which will give the actual and real picture of the microbial community from soil. So what we are doing in this case, मेटाजेनोमिक्स स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को स्टडी कर लेते हैं, मेटा प्रोटियोमिक्स को हम स्टडी कर लेते हैं, स्टेबल आइसोटोप प्रॉबिंग को हम स्टडी कर लेते हैं। सो दीज आर द अप्रोच ऑफ मॉडर्न सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर हम होल माइक्रोबियल कम्युनिटी के डीएनए को स्टडी करते हैं, मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को कर लेते हैं। इसमें से हम एक चीज को आज डिस्कस करते हैं, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। सो दिस वन इज द मेटाजेनोमिक्स। What is metagenomics? Metagenomics is the culture independent study of genetic material recovered directly from environmental sample, provides insights into the taxonomic composition, function potential, and ecological roots of the entire microbial community. इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो भी इन्वायरमेंटल सैंपल है, सॉइल है, वाटर है, या कोई और मटेरियल है, उससे डायरेक्ट हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको हम मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं पहले, फिर उन सीक्वेंसेस को हम जो है ना ये मेटाजेनोमिक जो लेटेस्ट अप्रोच हैं, उनके मदद से उसको देख लेते हैं। डीएनए को उसका एक्सट्रैक्ट किया सैंपल में से, उस डीएनए को हमने मशीन में डाला, उसकी सीक्वेंसिंग की, और सीक्वेंसिंग के बाद फिर हम मुख्तलिफ पाइपलाइनों से पास करके उन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन इसके अंदर स्टडी कर रही है, डिकोडिंग द कलेक्टिव जीनोम ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटी। नंबर 2, मेटाजेनोमिक वर्क फ्लो। सैंपल कलेक्शन, सॉइल का सैंपल हमने कहीं से भी कलेक्ट किया, उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस डीएनए के डायरेक्ट हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं। उन सीक्वेंसेस को हम बायो इंफॉर्मेटिक टूल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन के कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसकी टैक्सोनॉमिक प्रोफाइलिंग कर लेते हैं कि उसका फाइलम में कितना है, ऑर्डर कितना है, क्लासेस कितनी है, फैमिली कितनी है, जेनरा कितना है, इवन स्पीशी तक भी जाते हैं। दूसरी चीज उसमें फंक्शनल एनोटेशन, कि उसके अंदर एक्टिव माइक्रोबियल जीन्स कौन कौन सी हैं, जो मुख्तलिफ एंजाइम्स की प्रोडक्शन करती है, ठीक। और उसके पाथवेज को हम स्टडी कर लेते हैं, पाथवे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं डिफरेंट बायोइंफॉर्मेटिक टूल्स की मदद से। और डिफरेंट इकोलॉजीज, अब कौन सी माइक्रोवेव पॉपुलेशन वहां ज्यादा है या कम है, उससे हमें उसकी पिक्चर मिल जाती है। नंबर 3, शॉटगन मेटाजेनोमिक्स। टाइप्स ऑफ मेटाजेनोमिक्स। शॉटगन मेटाजेनोमिक्स sequence all genetic material in a sample, genes, non-coding DNA integration region.
इंट्रिंसिक रीजन, ये सब हम स्टडी कर लेते हैं शॉर्टकन मेटाजेनोमिक्स में। एम्प्लिकॉन मेटाजेनोमिक्स में टारगेट स्पेसिफिक मार्कर जीन्स, इसमें हम स्पेसिफिक मार्कर जो 16S को हम टारगेट करते हैं कि 16S सारे डीएनए से हम एक्सट्रैक्ट करें, उसका सीक्वेंस करें और आइडेंटिफाई करें उसकी बुनियाद पर कौन कौन से माइक्रोबियल पॉपुलेशन। और मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में फंक्शनल मेटाजेनोमिक्स focus on RNA to study actively expressed gene in the community। इसमें हम RNA को स्टडी कर लेते हैं मोस्टली कि इसके अंदर फंक्शनल जीन्स RNA जो बना है वो कौन कौन से एंजाइम्स के लिए बना है। फ्रॉम सीक्वेंसेस टू इनसाइड, ये सीक्वेंस किए, सीक्वेंस को हमने अपलोड किया है, इसमें जिसकी क्वालिटी बेहतर थी उसको हमने पास किया, बाकी को रिजेक्ट किया, उन सब की असेंबली बना दी और उसकी जीन प्रिडिक्शन एनोटेशन से उनकी जीन जेनेटिक प्रोफाइलिंग की, जीन 1, जीन 2, जीन 3। और ये जीन 3 की, जीन 1 की अबंडेंस कितनी है उसी की बुनियाद पर हमने इसको रखा। जीन 2 की अबंडेंस कितनी है, 3 की अबंडेंस कितनी है और जीन N की अबंडेंस कितनी। सपोज अब इसके थ्रू हमने इसकी टेक्सोनोमिक प्रोफाइलिंग की कि ये बैक्टीरिया है, ये आर्किया, ये फंजाई, ये वायरस और ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फंक्शनल प्रोफाइलिंग, फिर उसके हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनके अंदर कौन कौन सी जीन्स फंक्शनल हैं, ये चीज देख। तो की आउटकम्स इससे हमें क्या मिलता है, रिवील्स माइक्रोबियल डार्क मैटर, अनकल्चर्ड एंड अननोन टेक्सा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कल्चर नहीं कर सके हैं उन सब का जो है ना हमें मैप मिल जाता है। अनकवर जीन्स एंड पाथवे इन्वॉल्व इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग, जितनी भी हमने जीन्स अभी तक डिस्कवर नहीं कर सके हैं क्लासिकल मेथड से लेबोरेटरी के अंदर, उन सब वो भी डिस्कवर हो जाती हैं और उनका पाथवे की वो किस प्रोसीजर के थ्रू मुख्तलिफ फंक्शन जब परफॉर्म करती हैं, जाहिर बात है जीन एक्टिवेट होगी, वो आरएनए बनाएगी, आरएनए जाकर राइबोसोम में सिंथेसाइज होगा, सिंथेसिस होकर वो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम होगी और वो एंजाइम कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। लिंक माइक्रोबियल डाइवर्सिटी टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एंड प्लांट इन्फ्लुएंसेस। अब यहां से हमें यह पता चलता है, जब ये पिक्चर हमें मिल जाती है तो इस इकोलॉजिकल सिस्टम में कौन सी माइक्रोबियल पॉपुलेशन और कौन सी जीन्स अबंडेंट हैं और कौन सी जीन्स कम है। इन्वायरमेंट जिसको सप्रेस करता है उसकी तादाद कम होगी और इन्वायरमेंट जिसको सपोर्ट करता है उसकी मकदार ज्यादा होगी। सपोर्ट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या क्या है। कॉम्प्लेक्स डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सॉइल, सॉइल से जब हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है, अच्छा खासा मुश्किल होता है क्योंकि डीएनए मुख्तलिफ ह्यूमस और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी मटेरियल्स हैं उनके साथ एडहियर होकर बहुत ज्यादा तंग करता है। हाई कॉस्ट डेटा वॉल्यूम, एक तो इसकी ये एक्सपेंसिव है और इसका डेटा बहुत ज्यादा आता है जिसको संभालना मुश्किल होता है। बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, जिसके पास बायोइन्फॉर्मेटिक की एक्सपर्टीज है वो इस डेटा को हैंडल कर लेता है, बाकी के लिए मुश्किल होती है। डिस्टिंग्विश डीएनए फ्रॉम डेड वर्सेस एक्टिव सेल, और ये भी मुश्किल होता है कि ये डेड सेल्स हैं या लाइव सेल्स से निकले हैं, इसके मुतालिक अच्छी खासी मुश्किल आती है। एप्लीकेशन इन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं, इससे हमें क्लियर पता चल जाता है। प्लांट रूट के अंदर सिर्फ एक माइक्रोब को देखने की जरूरत नहीं, कितनी माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं जो इस पूरे सिस्टम को कैरी ऑन कर रही है। डिजीज सप्रेशन एंड प्लांट हेल्थ, इस चीज को देख सकते हैं। सॉइल हेल्थ असेसमेंट देख सकते हैं, बायोरिमेडिएशन देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट उसको देख सकते हैं। तो इसको आप डिटेल से पढ़ें, ये इस पोस्टर के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन बताने की कोशिश की है। और फर्दर आप जो है ना या तो एमजीरास जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर है
उसके अंदर जाकर आप उसको तफसील से देख सकते हैं, या किसी भी एडवांस माइक्रो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बुक में आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको किताब भी प्रोवाइड की गई है, आप उस किताब के अंदर भी डिटेल से देखें। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, आप उसको बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप सुन सकते हैं। और किताब से भी और यहाँ से भी, इस बोलने से भी समझ में नहीं आता है, तो आई एम अगेन अवेलेबल टू डिस्कस एनी मैटर, एनी कंफ्यूजन। आपके लिए गाइड करने के लिए मैं मौजूद हूँ। थैंक यू। विश यू अ नाइस डे।